Good evening, students. Now, today's topic of study is after alkaloidal drugs. We are going to study about phenylpropanoids and flavonoids. Means the topic of unit 2 further after alkaloidal drugs. जो आपने 4 alkaloidal drug पढ़ी हैं उसके बाद का जो topic है that is phenylpropanoids and flavonoids. So, starting with the topic, flavonoids are defined as the group of plant polyphenolic secondary metabolites. These are secondary metabolites as well like alkaloidal drugs. ठीक है, it is a group of plant polyphenolic secondary metabolites which shows a common 3-ring structure. Means flavonoid is described as a 3-ring structure group. ठीक है, group of secondary metabolites. They are widely distributed in different amounts according to the plant species, organ, developmental stage and growth conditions. ठीक है, the flavonoids have aroused considerable interest recently because of their potential beneficial effects on human health. Flavonoids क्या हैं generally? They have the potential considerable very much beneficial effects over the human health. Means physiological action उनका है as well as their role in plant metabolism. They have been reported to have antiviral, anti-tumor, anti-allergic, anti-platelet, anti-inflammatory and antioxidant activity. The main activity of flavonoids are antioxidant activity. ठीक है, apart from antioxidant activity it also possess antiviral, anti-tumor, anti-allergic, anti-platelet, anti-inflammatory activities also. Now the 3-ring structure flavonoid drug, you can see clearly this is 3-ring structure. ठीक है, their basic structure is a skeleton of diphenylpropane. ठीक है, इस 3-ring structure को क्या बोलेंगे हम? Diphenylpropane, which namely 2 benzene rings, ring A and B, you can see it clearly over here, linked by a 3-carbon chain that forms a closed pyrene ring. Pyrene ring क्या है? Heterocyclic ring containing the oxygen in the C ring with benzenic A ring. ठीक है, एक हमारा क्या है, ये pyrene ring है. pyrene ring में क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है ये, इसमें एक ऑक्सीजन ग्रुप आपका अटैच होता है. ठीक है, ये ग्रुप हमारा किससे अटैच है? 2 बेंजीन रिंग से. देयरफॉर देयर स्ट्रक्चर इज आल्सो रेफर्ड टू एज C6C3C6. ठीक है, इन मोस्ट केसेस बी रिंग इज अटैच्ड टू पोजीशन 2. जो बी रिंग है वो पोजीशन 2 से अटैच्ड है. ठीक है, ये देख रहे हैं आप नंबरिंग प्रॉपर्ली 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, उससे ये जो अटैच है, फिर ये हमारा 1 2 3 4 5 6. ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये लिखा है. इन मोस्ट केसेस बी रिंग इज अटैच टू पोजीशन 2 ऑफ सी रिंग. ठीक है, बहुत सारे केसेस में क्या, इस केसेस में भी बी रिंग अटैच है पोजीशन 2 से सी रिंग के, बट इट कैन ऑल्सो बाइंड इन पोजीशन 3 और 4 टू. ठीक है, ये 3 और 4 पोजीशन में भी बाइंड हो सकता है. Together with the structural features of the ring B and the patterns of glycosylation and hydroxylation of the 3 rings. ठीक है, means attach इसका second, third, fourth position पे depend करता है hydroxylation and glycosylation of 3 rings, which makes the flavonoids one of the larger and more diversified group of phytochemicals. ठीक है, due to this ring pattern, due to this ring structure, C6C3C6 structure, it belongs to a diversified group of phytochemicals. ठीक है, next is classification and chemistry of flavonoids. ठीक है, क्लासीफाई कैसे करते हैं, कितनी वैरायटी में इसे क्लासीफाई करते हैं. बेसिक क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछा जाता है ओवर फ्लेवोनॉइड्स तो ये ही पूछा जाता है कि कितने टाइप के होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है. बेसिकली they are classified in 6 major subgroups depending upon the carbon of the C ring on which B ring is attached. ठीक है, and the degree of unsaturation and oxidation of the C ring. मतलब basically it depends upon the C ring. अब you can see different type of flavonoids. This is chalcone, this is flavonone, flavon, flavonol, flavondiol
एंथोसाइनिडीन, प्रोएंथोसाइनिडीन, ऑरोन एंड आइसोफ्लेवॉन. बेसिकली यू कैन सी इसमें पायरान रिंग सब में प्रेजेंट है. ठीक है, इट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लेवोनॉइड्स ग्रुप. अब यू कैन सी इन आइसोफ्लेवॉन्स बी रिंग इज लिंक्ड इन पोजीशन 3. ठीक है, आइसोफ्लेवॉन में आप देखेंगे बी रिंग, जो आपकी बी रिंग है वो अटैच्ड है, लिंक है इन पोजीशन 3 ऑफ द रिंग सी. ठीक है, बी रिंग इज लिंक्ड इन पोजीशन 4 नियोफ्लेवोनॉइड. अभी आप आगे पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें. ठीक है, आगे एक्सप्लेन करते हैं. नाउ कंटिन्यू विद द स्लाइड. You can see what are the basic sources of flavonoids. Flavonol means various types of fruits and vegetables. Isoflavonoids, chalcones, flavons, flavonon and anthocyanins. ठीक है. Now one by one we will start classify each of the category of flavonoids and understand what it is. ठीक है. फर्स्ट क्लास इज फ्लेवॉन. ठीक है, फ्लेवोनॉइड की फर्स्ट क्लासिफिकेशन है फ्लेवॉन. स्ट्रक्चर उसका आप देखेंगे ये रिंग है आपकी 3. ठीक है, दिस इज ए रिंग, दिस इज बी रिंग, दिस इज सी रिंग. ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये पायरान रिंग है, सेम वैसे ही. तो यहाँ पे ग्रुप लगा है. ठीक है, नेक्स्ट इज सब क्लासेस इसकी क्या है, एपिजेनिन, ल्यूटियोलिन, टांजेरेटिन एंड डायोस्मेटिन. ठीक है, दीज आर सब क्लासेस. ये अगर याद रहे तो लिखें, नहीं याद रहे तो ना लिखें. नाउ द सोर्सेज, वेरियस सोर्सेज आप देखेंगे सेलरी, पार्सले, रेड पेपर एंड गिंगो बाइलोबा. ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा है इसमें. गिंगो बाइलोबा इज अ ड्रग विच यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस ड्रग. ठीक है, मतलब इसमें ये सोर्सेज है किसके, जिससे हमारे को फ्लेवॉन मिलता है. नेक्स्ट इज फ्लेवोनॉल. ठीक है, फ्लेवोनॉल में आप देखेंगे सेम ग्रुप है लाइक फ्लेवॉन, बस इसमें OH ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सब क्लासेस कैम्फेरॉल, र्यूटिन, मायरेसिटिन, क्वर्सेटिन एंड मोरिन. दीज आर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. ठीक है, नाउ सोर्सेस कहाँ से मिलता है हमें फ्लेवोनॉल, येलो अनियंस. ठीक है, स्केलियंस, ब्रोकली, एप्पल एंड बेरीज. ठीक है, नेक्स्ट flavonon. Next category is flavonon. Now you can see the structure, same structure A, B and C ring. इसमें क्या है, सेम है जैसा आपका फ्लेवॉन रिंग थी ना. You can see फ्लेवॉन यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड था, यहाँ पर नहीं है. ठीक है, सोर्सेज है इसके ऑरेंजेस, लेमन्स एंड ग्रेप्स. नेक्स्ट कैटेगरी इज एंथोसाइनिन. एंथोसाइनिन में आप स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले 3 रिंग स्ट्रक्चर है, ए बी सी रिंग, पायरान रिंग प्रेजेंट है और इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, सब क्लासेस आर साइनिडीन, माल्विडीन, पेलरगोनिडीन, पियोनिडीन, डेल्फिनिडीन एंड द बेसिक सोर्सेज आर फ्रॉम वेयर वी गॉट एंथोसाइनिन इज ब्लूबेरीज, प्लम, ब्रिंजल एंड ग्रेप्स. ठीक है, नेक्स्ट इज आइसोफ्लेवोनॉइड्स. नाउ द स्ट्रक्चर इज बेसिक 3 रिंग्स है, पायरान रिंग सेम रिंग था. ठीक है, आप उसकी पोजीशन देखेंगे, सिर्फ पोजीशन चेंज है आपकी. ठीक है, पोजीशन मतलब 2 से 3 पे आ गई है. नेक्स्ट सोर्सेज आर सोयाबीन, सोया फूड्स एंड लेग्यूम्स. नेक्स्ट कैटेगरी इज चालकॉन. चालकॉन में आप देखेंगे स्ट्रक्चर, इसमें आपकी ओपन रिंग प्रेजेंट है, पायरान रिंग को ओपन कर दिया है. ठीक है, 2 रिंग्स प्रेजेंट है A एंड B, उसमें OH ग्रुप लगा है और यहाँ पे क्या लगा है, कीटोन ग्रुप लगा है और यू कैन सी द ओपन साइकिल चेन. ठीक है, नेक्स्ट इज सब क्लासेस फ्लोरेटिन, आर्ब्यूटिन, चालकोन, आरेंजिनिन. ठीक है, सोर्सेज कहाँ है, बेसिक चालकॉन्स कहाँ से मिलते हैं आपको, टोमेटोज, पियर्स, स्ट्रॉबेरी, व्हीट प्रोडक्ट्स. ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ जितने भी व्हीट प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, व्हीट ब्रेड, व्हीट चपाती खाते हैं आप व्हीट से. नेक्स्ट इज रोल ऑफ फ्लेवोनॉइड. बेसिक रोल क्या है आपका फ्लेवोनॉइड का प्लांट डिफेंस में. ठीक है, जो फिनाइल प्रोपेनॉइड्स है, जो अभी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि फिनाइल प्रोपेनॉइड एंड फ्लेवोनॉइड हम पढ़ेंगे इस यूनिट में. तो फिनाइल प्रोपेनॉइड क्या है, पार्ट ऑफ फ्लेवोनॉइड. ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे आगे व्हाट फिनाइल प्रोपेनॉइड्स आर. फिनाइल प्रोपेनॉइड एक्ट्स एज अ की केमिकल मॉड्यूलेटर्स ऑफ प्लांट. ठीक है, they act as a key chemical modulators of plant communication with the insects and various types of microbes either as attractants or repellents. ठीक है,
और एज फाइटोअलेक्जेंस ऑल्सो अगेंस्ट द पैथोजेंस एंड हर्बीवोर्स। ठीक है, मतलब ये कैसे एक्ट करते हैं, केमिकल मॉड्यूलेटर की तरह कैसे एक्ट करते हैं अगेंस्ट इंसेक्ट्स एंड माइक्रोब्स, अट्रैक्टेंट्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, रेपेलेंट्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, एंड फाइटोअलेक्जेंस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं वेरियस टाइप अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ पैथोजेंस एंड हर्बीवोर्स टू। ठीक है, द डेरिवेटिव्स ऑफ द इनिशियल फिनाइल प्रोपेनॉइड प्लेज अ वाइटल रोल इन प्लांट स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। ठीक है, जो फिनाइल प्रोपेनॉइड है वो एक हमारा बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है प्लांट की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में, एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी रेडिएशन टू प्लांट्स एंड फाइटोपैथोजेंस, वेरियस टाइप्स ऑफ फाइटोपैथोजेंस अटैक्स। इंटरनल रेगुलेशन ऑफ प्लांट सेल फिजियोलॉजी हेल्प्स इन द इंटरनल रेगुलेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, एंड सिग्नलिंग टू मीन्स जो भी अगर कोई अटैक होने वाला है आपके प्लांट पे या कोई भी इंजरी होने वाली है उसके लिए पहले से वो हमारे को मॉड्यूलेटर्स के थ्रू हमारे को प्रोवाइड कर देता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट, इट इंड्यूसेस रूट नॉड्यूलेशन व्हेन एक्सक्रीटेड बाय सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबिया। Some flavonoids provide stress protection. For example, it acts as a scavengers of free radicals such as reactive oxygen species, as well as metal chelating agents that generate reactive oxygen species. ठीक है, इसमें क्या है, फ्लेवोनॉइड प्रोवाइड करते हैं हमें प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल ये क्या करते हैं, फ्लेवोनॉइड्स के एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्कैवेंजर्स ऑफ फ्री रेडिकल सच एज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ठीक है, मेटल चिलेटिंग एजेंट्स की तरह भी एक्ट करते हैं जो कि जनरेट करती हैं जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। नेक्स्ट इज beneficial effects associated with consumption of flavonoids means when we consume करेंगे हम किसी भी फ्लेवोनॉइड ड्रग को तो क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके। ठीक है, you can see reduced risk of cardiovascular diseases, reduction in blood pressure due to its vasodilating effect, delays or prevents the onset of diseases caused by free radical means डिले करता है और प्रिवेंट करता है किसी भी डिजीजेस के ऑनसेट को विच आर कॉज बाय फ्री रेडिकल्स। इट इज़ अ बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी मतलब किसी भी टाइप की कोई इन्फ्लेमेशन होती है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ एंडोथेलियल फंक्शंस, इट ऑल्सो इनहिबिट्स LDL ऑक्सीडेशन बाय फ्री रेडिकल्स, इट ऑल्सो इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, act as an antiviral drug and an antibacterial drug too. Next, basic dosage. What is the dosage of this particular flavonoid? Flavonoid intake depends upon the consumption of fruits. Means जितना ज़्यादा आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ्लेवोनॉइड बॉडी में मिलेगा, और फ्लेवोनॉइड क्या करेगा, एज एन एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में एक्ट करेगा और बहुत सारी आपको डिजीजेस से प्रोटेक्ट करेगा। Flavonoid intake depends upon the consumption of fruits, vegetables and certain types of beverages too, such as red wine, tea and beer. The high consumption of tea and wine may be most influential on total flavonoid intake. Means जो हाई लेवल ऑफ फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट होता है वो टी में और वाइन में प्रेजेंट होता है जो कि इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में फॉर द इनटेक ऑफ फ्लेवोनॉइड। This intake is high as compared to the average daily intake of other dietary antioxidants like vitamin C, vitamin E and carotenoids. These are the basic dosage जो कि हमारी होनी चाहिए एक डेली डाइट में। Now next, phenyl propanoids and related compounds. फिनाइल प्रोपेनॉइड क्या है, इसमें फिनाइल प्रेजेंट है तो मीन्स फिनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट है। फिनॉल्स प्रोबेबली कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मीन्स जो भी आप अभी स्टडी कर रहे हैं इस यूनिट में जितनी भी आप टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्टडी करेंगे वो सब किस कैटेगरी में है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में। पहले हमने अल्कलॉइड्स पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लेवोनॉइड्स एंड फिनाइल प्रोपेनॉइड्स। ठीक है, फिनॉल्स आर यूटिलाइज्ड एज कलरिंग एजेंट्स। फिनॉल्स क्या होते हैं, कलरिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, वो कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, एरोमा एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं। दीज आर सिंपल फिनॉलिक कंपाउंड्स। दे कैन बी टैनिन्स, कॉमेरिन्स, ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्राक्विनॉन्स एंड ग्लाइकोसाइड्स, नेप्थेक्विनॉन एंड ग्लाइकोसाइड्स,
फ्लेवोनोन्स एंड रिलेटेड फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड, एंथोसाइनिडीन्स, लिग्नैंस एंड लिग्निन, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? फिनोलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल प्रोपेनॉइड। सी 6 मेंबर्ड रिंग एंड CH3 group attached है. It is a diverse family of organic compounds that are synthesized by plants from the amino acid phenylalanine. ठीक है, इट इज़ अ डाइवर्स फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीन्स फिनाइल प्रोपेनाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं प्लांट्स के द्वारा फ्रॉम द अमीनो एसिड। कौन से अमीनो एसिड से? मीन्स इसकी जो सिंथेसिस है वो किस प्रीकर्सर से होती है? फिनाइल एलानिन एक्ट एज अ प्रीकर्सर, ठीक है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिनाइल प्रोपेनॉइड्स। देयर नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द 6 कार्बन एरोमेटिक फिनाइल ग्रुप and the 3 carbon propene tail of cinnamic acid, which is basically synthesized from phenylalanine in the first step of phenyl propenoid biosynthesis. ठीक है, phenyl propenoids are found throughout the plant kingdom where they serves as an essential component of a number of structural polymers. Means phenyl propenoids मिलते हैं हमारे प्लांट किंगडम में थ्रू आउट, मीन्स काफ़ी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, which serves as a essential component of a number of structural polymers. Means वो एक्ट करते हैं हमारे बहुत सारे structural polymers को देने में, हमें प्रोवाइड करने में, which provide protection either from UV light, defense against herbivores and various types of pathogens, and also mediate, मतलब mediate करते हैं ये plant pollinator interactions, interaction between plants and pollinator एज फ्लोरल पिगमेंट्स। मीन्स फिनाइल प्रोपेनाइड्स को आप क्या बोल सकते हैं? फ्लोरल पिगमेंट्स भी बोल सकते हैं। और सेंट कंपाउंड्स, मीन्स इसमें से खुशबू आती है। कंसनट्रेशंस ऑफ फिनाइल प्रोपेनाइड्स विद इन प्लांट्स आर ऑल्सो ऑल्टर्ड बाय चेंजेस इन रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, various types of phenyl propenoids and other phenolics are part of the chemical composition of sporopolanin. It is a constituent, ठीक है, sporopolanin is a constituent जो कि पार्ट है किसके? फिनाइल प्रोपेनॉइड्स के। दिस सब्सटेंस फाउंड इन द pollen is not exactly known due to its unusual chemical stability and resistance to degradation by enzymes and strong chemical reagents. Analysis have revealed a mixture of biopolymers which contains mainly long chain fatty acids. मीन जो स्पोरोपोलेनिन है इसमें क्या प्रेजेंट है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, फिनोलिक्स एंड ट्रेसेस ऑफ कैरोटिनॉइड्स। ट्रेसर एक्सपेरिमेंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेसर टेक्निक्स और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो शो करता है फिनाइल एलानिन इज अ मेजर प्रीकर्सर, विच आई टोल्ड यू बिफोर। फिनाइल एलानिन क्या है? एक मेजर प्रीकर्सर है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिनाइल प्रोपेनॉइड, बट other carbon sources also contribute as a precursor for the synthesis of phenyl propenoid too. It is likely that sporopolanin derives from several precursors, means sporopolanin जो ये है वो derive होता है various several carbon precursors that are chemically cross linked, means वो chemically cross linked हैं each other, एक दूसरे से, to form a rigid structure. Now various types of phenyl propenoid drug you can see. कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी में भी आपके फिनाइल प्रोपेनॉइड और फ्लेवर फ्रेगनेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लोव्स में प्रेजेंट होता है, सिनेमन बार्क में प्रेजेंट होता है, नटमेग में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज जिंजर राइजोम, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्किड्स, रेड एंड ब्लैक पेपर्स, वनीला एट्सेट्रा, ग्रीन टी, ठीक है। अब यू कैन सी द बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसमें, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कॉफ़ी बीन में जिसमें फिनाइल प्रोपेनॉइड प्रेजेंट है, ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे जब आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे। क्लोव्स में आप देखेंगे क्या है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो एक्ट करता है एज अ फिनाइल प्रोपेनॉइड इज चेविकॉल और यूजिनॉल, ठीक है। सिनेमन बार्क में है आपका सिनेमल्डिहाइड, नटमेग में है सेफ्रॉल एंड माइरिस्टिसिन, स्ट्रक्चर आप देख लेंगे। नेक्स्ट जिंजर राइजोम, इसमें मेन फिनाइल प्रोपेनॉइड ड्रग इज जिंजरॉल्स।
ऑर्किड्स में फिनाइल इथाइल अल्कोहल, रेड एंड ब्लैक पेपर्स में कैप्सिसिन, पाइपरिन एंड नॉर डाईहाइड्रोकैप्सिसिन, वनीला में वेनिलिन, ग्रीन टी में एपिकेटेचिन एंड एपिगैलोकेटेचिन। ठीक है, थैंक यू। If you still have any doubt, you can ask in Google Classroom.